मैन्सफील्ड, ये न्यूजीलैंड की ऑथर थी और ये उस टाइम पे बॉर्न था इनका, इंडिया की तरह ब्रिटिशर्स ने वहां पे भी रूल किया है और 1880s 1890s की कहानी है। और she was 19 years old when she moved to London and there she became an author and it was very much appreciated author। और न्यूजीलैंड में आज भी इनके नाम से ईयरली बुक अवार्ड्स मिलते हैं फॉर यंग राइटर्स। तो उनकी एक कहानी है, इट्स नॉट अ ट्रू स्टोरी, इट्स अ फिक्शनल स्टोरी। कैसे एक छोटी लड़की अपने पेरेंट्स के साथ कैसे विजुअलाइज करती है, उसके फादर उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, so she always think that father is very strict and she doesn't like her father and what happened in the story, let's see। Does somebody wants to read? Anybody who wants to read? Nobody wants to read. Neha, unmute yourself। Neha Sharma, unmute yourself। No, you don't want to read? अरे पढ़ने में तो क्या लेजीनेस है। नेहा, unmute yourself। Yes, Yes, Neha, ma'am. could you read Can the I read? paragraph and yes, read the paragraph and later on explain। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with "Goodbye, father." And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. Yes, In the stop। इसमें क्या है कि केजिया नाम की एक छोटी लड़की है और ये उस टाइम की कहानी है जब कार भी स्टार्ट नहीं हुई थी और उसके फादर उस बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो ये बहुत डरती थी अपने फादर से। रोज सुबह उसके फादर उसके माथे पे प्यार करके और उससे मिलके ही ऑफिस जाया करते थे और ये बस अपने फादर को गुड बाय बोलती थी और जैसे जैसे उनकी गाड़ी दूर चली जाती थी, आवाज धीरे आती थी उनकी गाड़ी की बग्गी की, वैसे वैसे ही खुश होती थी, चलो गए पापा, आराम हुआ। यस प्लीज रीड। In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. "Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there, and bring me my slippers." यस प्लीज स्टॉप। अब शाम को जैसे ही पापा ऑफिस से आते थे तो उनकी तेज आवाज से बोलते थे कि ड्राइंग रूम में मुझे चाय लेकर आइए। और वो पेपर जो उनका न्यूज पेपर था, प्रोबब्ली इट वाज एन इवनिंग पेपर, तो वो वहां पे बैठ के ड्राइंग रूम में और अपना इवनिंग पेपर पढ़ा करते थे। और इसका काम Papa. हैजंट पेपर कमिट एंड केजिया का काम होता था कि लेकर आना है। यस प्लीज रीड द सेकंड पॉइंट। Kezia, mother would call to her, "If you are a good girl, you can come down and take off father's boots." Slowly, the girl would slip down the stairs, more slowly, still across the hall, and push open the drawing room door. यस प्लीज By स्टॉप। अब ये केजिया का काम था कि फादर के स्लीपर्स लाने हैं, शूज हटाना है, लेकिन वो उसको अवॉइड करने के लिए वो धीरे धीरे स्टेयर से उड़ रही थी। माँ को दोबारा बोलना पड़ा कि केजिया अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो आइए, अच्छी लड़की बनिए, अपना काम करिए। धीरे धीरे वो उतर रही थी क्योंकि वो अवॉइड करना चाहती थी अपने फादर को जितना हो सके। यस प्लीज रीड। by that time, he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. "Well, Kezia, hurry up, pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today?" "I यस don't know, father." यस प्लीज स्टॉप। अब तब तक पापा ने चश्मा पहन लिया था और अखबार पढ़ने के लिए रेडी हुए थे। उन्होंने उसको देखा और केजिया को लगा कि ये डर गई वो उसके देखने के तरीके से और पापा ने पूछा क्या आपने आज कोई शैतानी करी, क्या आप अच्छे बच्चे बने रहे आज? तो उसने कहा कि पता नहीं पता नहीं। यस you can Well, somebody else also read? Yeah, let others also try। Hina, okay।
Hinna, unmute yourself. Yes, ma'am. Ma'am, you don't. Ma'am, may I Sure. read? Yes, sir. I don't know, father. You don't know. If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. She never shuttered with other people, had quite given it up, but only with father because then she was trying so hard to say the words properly. What's the matter? What are Stop, you? stop, please, stop, please. अब क्या हुआ था, ये पापा से डरती थी और ज्यादातर ये देखा गया कि जब बच्चे डर जाते हैं तो हकलाने लग जाते हैं। तो ये जवाब सही से नहीं दे रही थी, हकला के बोल रही थी। पापा को और गुस्सा आ गया, उसने कहा कि अगर तुम ऐसे हकला के बोलोगी तो तुम्हारी माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। ज्यादातर वो सब लोगों से आराम से बात करती थी, लेकिन चूंकि पापा से बोलने के लिए उसको एक्स्ट्रा प्रेशर फील हो रहा था, तो इसलिए वो और भी घबरा के और हकला के बोल रही थी। यस प्लीज रीड। Yes, ma'am. What's the matter? What are you looking so wretched about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. He was so यस big, स्टॉप his. स्टॉप Yes, स्टॉप। ma'am. अब ये पापा चिढ़ रहे उससे कि ये इतना मतलब क्यों दुखी क्यों रहती है, ऐसा इसका मुंह बना रहता है जैसे कि अब बस जाके मरने ही वाली है। ब्रेक मतलब एज, एज ऑफ द सुसाइड। और उसने अपनी वाइफ को डांटा, केजिया की मदर को डांटा कि ये क्यों ऐसे मुंह बना के रहती है हर पूरे टाइम पे। अब फिर उसको बोला कि चाय का कप उठा के ध्यान से टेबल पे रखो। यस प्लीज रीड। Yes, ma'am. He was so big. His hands and his neck, especially his mouth, when he yawned, thinking about him alone was like thinking about a giant. यस प्लीज स्टॉप। अब केजिया का क्या था, एक तो वो पापा से डरती थी, गुस्सा था, और वो बहुत छोटी थी और पापा बड़े थे, तो उसका ऐसा लगता था जैसे कोई दानव हो, कोई राक्षस हो, कोई जायंट हो। इतने बड़े बड़े हाथ थे पापा के, इतनी बड़ी गर्दन। अब यही चीज बहुत प्यारी लगती अगर उनके आपस के रिलेशन अच्छे होते और प्यार से बात करते अगर वो बच्चे से, तो उसको वो बहुत अच्छे लगते। लेकिन चूंकि वो उससे गुस्सा रहते हैं तो उसको वो डेविल जैसे लगते हैं, उनके फिजिकल स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है और ये घबराती है उनसे। यस। Yes, ma'am. On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. But the little girl always found mother and mother. But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. यस प्लीज स्टॉप। अब संडे के दिन की बात है। अब दादी माँ ने जबरदस्ती केजिया को बोला कि जाओ अपने पेरेंट्स से बात करो। उसको शायद उसकी दादी को पता था कि केजिया डरती है, तो वो चाहती थी कि उसके पेरेंट्स से बॉन्ड स्ट्रांग बने, तो वो डेलिबरेटली उसको भेजती है कि जाओ ड्राइंग रूम में जाओ अपने पेरेंट्स से बात करो। लेकिन वो यहाँ आती है तो क्या देखती है कि मम्मी तो कुछ पढ़ रही है और पापा सोफे पे लेटे हुए, मुंह पे रुमाल डला हुआ है। तो वो जबरदस्ती आई बात करने के लिए, लेकिन क्या करे, क्योंकि इन लोगों के आपस में कम्युनिकेशन गैप है, कुछ इश्यूज हैं, तो इन लोगों में गैप कम हो जाए इसके लिए दादी माँ जबरदस्ती कोशिश करती है कि इनका बॉन्ड स्ट्रांग बने, लेकिन वो यहाँ आके देखती है कि nobody is eager to talk to her. Yes, could you read a couple of more stanzas, please? Yes, ma'am. She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. Don't stare so, Kezia. You look like a little brown owl. Yes, One stop, day, please. Stop. अब वो क्या बात करने के लिए दादी ने भेज दिया था इनको, तो अब ये क्या करा, तो उन्होंने क्या करा, वहीं पे स्टूल पे बैठ गई। अब बैठे बैठे अपने पापा को घूर रही हैं। जब पापा सो के उठे तो उठ के देखा कि ये बच्चा उसको घूर रहा है, तो वो बोले कि ऐसे क्यों देख रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम एक छोटे ब्राउन आउल हो, उल्लू की तरह बैठ के क्यों देख रहे हो मुझको, उसको समझ में नहीं आया। यस प्लीज रीड। yes, ma'am. One day, when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. यस प्लीज स्टॉप। एक दिन की बात है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो ये घर पे ही थी, स्कूल नहीं गई थी। तो उसकी ग्रैंड मदर ने कहा कि देखो, ग्रैंड मदर फिर कोशिश करती है कि फादर डॉटर का बॉन्ड अच्छा हो, तो वो उसको रिमाइंड करती है कि देखो आपके फादर की बर्थडे है एक हफ्ते के बाद,
और आपको कुछ गिफ्ट बनाना चाहिए, फादर को अच्छा लगेगा। तो उन्होंने येलो सिल्क का एक कपड़ा दिया उसको कि इसका एक पिन कुशन बनाओ। पिन कुशन वो होता है छोटा सा जिसमें ऑल पिन्स या सिलाई की जो सुइयां होती हैं वो लगाते हैं। तो जो ऑफिस में जो काम करते हैं उनको पिन्स चाहिए होती हैं, तो यूज करा, यूज करने के बाद उस कुशन में पिन लगा देते हैं जिससे वो इधर उधर नहीं भागती। तो उसने कहा कि आप छोटा सा एक पिन कुशन बनाओ अपने फादर के बर्थडे गिफ्ट के लिए। Is anybody else who wants to read? Yes, Nitesh. Unmute yourself. Yes, ma'am. Yes, please read fifth point. Ma'am, laboriously with a double cotton, the little girl stitched three sides. But what to fill with it? That was the question. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces, and stuffed her case. Then sewed up the fourth side. Yes, please stop. अब इसने अपनी ग्रैंड मदर का सजेशन मान लिया। इसने कहा कि ठीक है मैं पिन कुशन बनाऊंगी। डबल कॉटन का कपड़ा वो जो लिया सिल्क पीस था उसके अंदर कॉटन लगा के उसने तीन तरफ से तो थैली जैसा सिल दिया। लेकिन अब इस कुशन में भरे क्या, कुछ सॉफ्ट कॉटन होनी चाहिए। ग्रैंड मदर की तरफ देखा तो ग्रैंड मदर गार्डन में गई हुई थी, तो उन्होंने सोचा कि अपनी दादी का इंतजार कौन करे, चले खुद ही कुछ ढूंढ लेते हैं मटेरियल। अपनी मम्मी के कमरे में गई, बेडरूम में देखा उन्हें कुछ नहीं मिला। बेड साइड टेबल पे कुछ पेपर्स रखे थे जो हो सकता है इंपॉर्टेंट पेपर्स हो, पर इनको तो लगा कि ठीक है स्टफिंग काम आ जाएगा। इन्होंने सारे पेपर्स लिए, छोटे छोटे फाड़े और स्टफिंग में करके अंदर भर दिए उस थैली में और तीसरी तरफ से सिल दिया। यस, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? That night there was a hue and cry in the house. Father's great speech for the Port Authority had been lost. Rooms were searched, servants questioned. Finally, mother came into Kezia's room. अब हुआ क्या Kezia, कि I हाँ यस, suppose. ए प्लीज स्टॉप। अब हुआ क्या कि उस दिन शाम को बहुत घर में हल्ला मचा, बहुत अफरा तफरी हुई। क्यों? क्योंकि फादर की एक इम्पोर्टेंट स्पीच थी जो उनको देनी थी पोर्ट अथॉरिटी के फंक्शन पे। वो स्पीच गायब थी। सारा कमरा छान दिया गया, सब नौकरों से पूछताछ हुई कहाँ गई वो स्पीच, कहाँ गई वो स्पीच। आई थिंक आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कहाँ गई थी स्पीच। फाइनली Yes, मदर ma'am. ने फाइनली मदर ने आके केजिया के कमरे में आके उनसे पूछा। प्लीज रीड। Kezia, I suppose you didn't see some papers on a table in our room? Oh, yes, she said. I tore them up for my surprise. What? Screamed mother. Come straight down into a dining room this instant. यस प्लीज स्टॉप। अब जब माँ ने उनसे पूछा कि आपने कुछ पेपर्स थे पापा के, आपने देखे क्या, उन्होंने बोला हाँ हाँ देखे और हमने उसको फाड़ भी दिया और हमने सरप्राइज बनाया उसके लिए। अब मदर बहुत तेज गुस्से में चिल्लाई, बोले इसी वक्त नीचे आओ। डाइनिंग रूम में क्या क्या था, उसके फादर, ग्रैंड मदर, एवरीबडी वाज देयर। तो उसने बोला कि फौरन नीचे आओ और अभी इसको डांट पड़ने वाली है। यस प्लीज रीड द सिक्स्थ पॉइंट। And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. Well, he said sharply. Mother explained. He stopped and stared at the child. Did you do that? No, no, she whispered. Mother, go up to her room and fetch down the damned things. See that the child's put to bed. दिस इंस्टेंट। Crying too much to explain, she lay in the. नहीं नहीं प्लीज स्टॉप। अब उनसे पूछा कि अब जब कोई टेंशन में होता है ना तो चलने फिरने लग जाते हैं। मतलब एक कोने से दूसरे कोने, रूम में चहलकदमी करने लग जाते हैं टेंशन में कुछ लोग। तो ऐसे ही उसके फादर हाथ पीछे बांधे हुए और टहल रहे थे एक तरफ से उधर, बहुत टेंशन में थे। उन्होंने जोर से पूछा, उसकी माँ ने एक्सप्लेन करा और उसने फादर ने बच्चे से पूछा कि क्या तुमने किया था। अब वो फादर के सामने वैसे ही परेशान रहती है और फिर गुस्से में थे, वो डांट रहे थे उसको, तो वो हकलाई और बोली नहीं 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 किया। अब तो उसने कहा कि इसी वक्त इसको कमरे में ले जाओ और सोने के लिए बोल दो। यस नेक्स्ट पॉइंट, सेवेंथ पॉइंट। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Then father came into the room with a ruler in his hands. I am going to beat
you for this, he said. Oh, no, no, she screamed, hiding under the bedclothes. She pulled them aside. Sit up, he ordered, and hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. But it was for your birthday. Down came the ruler on her little pink palms. Yes, please. Thank you. Uh, ये story 1800s की है. So hitting your child and physical punishment was not a crime till then. So father came into the room with a ruler, scale लेकर आया. बोले कि अब तुम्हारी पिटाई होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि जो चीजें तुम्हारे काम की नहीं है वो तुम्हें हाथ नहीं लगानी चाहिए. उसने थोड़ा सा रिस्पॉन्स करने की कोशिश करी कि पापा को बर्थडे का गिफ्ट, लेकिन वो पूरी बात कर ही नहीं पाई और उसके छोटे गुलाबी हाथों पे कस के स्केल पड़ी. Yes, point number 8. Who wants to read now? Anybody? Hitesh, unmute yourself. Good morning, ma'am. Morning, beta. Yes, please read. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. What did God make fathers for? She sobbed. Here's a clean hanky, darling. Blow your nose. Go to sleep, pet. You will forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and red color flew into her cheeks. Yes, please stop. अब क्या हुआ कि दादी इसको बहुत प्यार करती थी. तो अब जब इसकी पिटाई हो गई तो उसके बाद दादी ने इसको कस के अपनी गोद में लिया. रॉकिंग चेयर होती है जो स्विंग होती है आगे पीछे, अपनी गोद में उसको लिटाया और रॉकिंग चेयर पे बैठी और उसको प्यार किया, बहुत उसको सांत्वना दी. बोले कि ना, अब ये इतनी दुखी थी, ये अपनी दादी से बोलती कि भगवान ने फादर्स बनाए ही क्यों, फादर्स होने ही नहीं चाहिए. अब उसने कहा कि नहीं नहीं चुप हो जाओ, उसको साफ हैंकी दिया. उसने बोला कि कोई बात नहीं, सुबह तक तुम सब भूल जाओगे. मैंने पापा को बताने की कोशिश करी थी कि क्या हुआ था, लेकिन अभी वो इतने गुस्से में है तो उनकी इम्पोर्टेंट चीज खराब हो गई, तो वो अब कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है. ले, लेकिन बच्चे, अपन को लगता है कि ना बच्चे समझते नहीं है, बच्चों को ध्यान नहीं देते, लेकिन बच्चे आसानी से नहीं भूलते. अपन को लगता है बच्चा ही तो है, इसको क्या पता चलेगा, लेकिन बच्चों को समझ में आता है और वो भी नहीं भूली. अब अगली बार जब उन्होंने उसको देखा, अपने नेक्स्ट डे जब फादर को दिखी, तो उसने फट से अपने हाथ पीछे कर लिए, क्योंकि अब कहीं उसको डर लगा था कहीं आज भी पिटाई नहीं हो जाए, और उसके डर के मारे उसके गाल एकदम लाल हो गए. यस, वन मोर पॉइंट प्लीज. The McDonalds lived next door. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. The father with the baby, Mao, on his shoulders, 2 little girls hanging on his coat pockets, ran around and around the flower beds, shaking with laughter. When she saw the boys turn the hose on him, and he tried to catch them, laughing all the time. Then it यस, प्लीज was स्टॉप, she प्लीज स्टॉप, प्लीज स्टॉप. अब इनके पड़ोसी थे, केजिया के पड़ोसी थे मैकडोनल्ड फैमिली. तो ये इनके लकड़ी की फैंस होती हैं, लकड़ी की फैंस की झिरियों में से इसने देखा मैकडोनल्ड के जो फादर थे और उनके खूब सारे बच्चे थे, 5 बच्चे थे इनके. तो मैकडोनल्ड अलग किस्म के फादर थे, वो अपने बच्चों के साथ खूब खेलते थे, तो इसको देख के बड़ा अजीब लगता था. इसने देखा कि ना अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, एक बच्चे को कंधे पे बिठा रखा है, 2 बच्चे पॉकेट पकड़ के लटक गए हैं. होज मतलब वाटर पाइप, गार्डन का जो वाटर पाइप होता है, एक लड़के ने उसके ऊपर पाइप ऑन कर दिया, तो गुस्सा करके मारने की बजाय वो उनके साथ खुश थे और खेल रहे थे. पूरे टाइम सब जने हंस रहे थे. केजिया को बड़ा अजीब लगा, क्योंकि इनके घर में बड़ा सब स्ट्रिक्ट रहते थे,
और ये देखो इनके नेबर्स, बच्चे और फादर कितने अच्छे से खेल रहे हैं. प्लीज रीड. Then it was she decided there were different sorts of father. Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. The little girl was left alone in the house with Alice the cook. That was all right in the daytime. But while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. यस प्लीज स्टॉप. अब ये एक दिन की बात है, तब कीजिया को समझ में आया कि फादर्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं. ये देखिए मैकडोनल्ड को देख रही है अपने बच्चों के साथ खेलते हुए, तो इसने डिसाइड किया कि देखो फादर्स की भी अलग अलग टाइप होती है, और ये मैकडोनल्ड अलग टाइप के हैं, मेरे फादर अलग टाइप के हैं. एक दिन की बात है कि एलिजा की माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो दादी के साथ हॉस्पिटल गई. अब ये पापा के साथ अकेले रह गई, क्योंकि इनके घर में नौकर थे, एलिस मस्ट बी द मेड. तो उसने सब दिन में तो सब ठीक रहा, एलिस ने उसको रात को सोने के लिए बेड पे भी लेटा दिया, लेकिन अब उसको डर लगने लग गया. प्लीज रीड द लास्ट पॉइंट, 10th पॉइंट. What will I do if I have a nightmare? She asked. I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa. यस प्लीज स्टॉप. But the अब इसने, same old प्लीज स्टॉप nightmare स्टॉप came. स्टॉप. अब क्या था, केजिया बहुत छोटी थी, और रात को जब भी ज्यादातर बच्चे जो अकेले सोते हैं उनको ऐसा लगता है कि ना पलंग के नीचे भूत है या अलमारी के अंदर भूत है, तो इसको रात को बुरे सपने आते थे, और जब भी इसको बुरे सपने आते थे ये दौड़ के दादी के बिस्तर में चली जाती थी, और दादी के पास इसको हमेशा आराम मिलता था. तो उसने कहा कि रात को ना अलग अलग तरह की आवाजें आती हैं, विस्पर मतलब फुसफुसाना, इसको लगता है कभी यहाँ से कोई बोल रहा है, कभी वहां से कोई बोल रहा है. तो एलिस जो उनकी सर्वेंट थी, उन्होंने उसको समझाया कि देखो कोई बात नहीं, पुल ऑफ योर सॉक्स करते हुए उसने बोला, समझाया उसको कि देखो डरना मत और चिल्लाना मत, और पापा को मत उठाना, पापा थक कर आए हुए हैं तो उनको मत परेशान करना. तो अब देखिए क्या हुआ रात को, क्या उसको सबसे राइट में रहा है. यस प्लीज रीड द लास्ट पैराग्राफ. But the same old nightmare came. The butcher with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, Grandma, Grandma. She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. यस प्लीज स्टॉप. थैंक यू. अब हुआ क्या कि वापस वो सपना आया. उसका एक ही नाइट में आता था बार बार, कि एक बुचर मतलब जो मीट काटता है, वो उसके बड़ा सा नाइफ होता है उसका, कि उसके एक हाथ में बड़ा चाकू है और एक हाथ में रस्सी है, केजिया को बांधने के लिए आ रहा है, मारने के लिए आ रहा है, और हंसता हुआ आ रहा है, और ये बहुत डरती है. बार बार इसको यही सपना आता है, और चिल्लाई दादी दादी करके चिल्लाई. जैसे ही उसकी आंख खुली, उसने देखा उसके फादर उसके बेड के साइड खड़े हुए हैं, और हाथ में कैंडल है. मतलब ये उस टाइम की कहानी है जब लाइट भी नहीं थी वहां पर. Now who will read last two paragraphs? Yes, Ruchi, unmute yourself. Sorry. Sakshi has been raising their hands for a lot of time. Sakshi, could you please unmute yourself? Yes, ma'am. Could you please read last two paragraphs? Yes, ma'am. Oh, a butcher, a knife. I want Granny. He blew out the candle, bent down, and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. A newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tucked up the child. He lay down beside her, half asleep still, with the butcher's smile all about her, it seemed.
She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. Please Then the stop, dog stop. अब जब उसके फादर ने उससे प्यार से पूछा, बोला क्या हुआ, नाइटमेयर आया, जब वो चिल्लाई तो उसने पूछा कि हुआ क्या, तो उसने कहा, पूरी बात तो बता नहीं पाई, उसने कहा कि वो था बुचर था, उसके चाकू था और मुझे दादी चाहिए। तो पापा ने कहा, समझ गए कि इसको ये रात को इस तरह से प्रॉब्लम होती है, तो वो उसने कैंडल बुझाई और उसके पास लेट गए, छोटे बच्चे को अपने हाथ में लिया और जैसे ही वो आधे सोने वाली थी तो उसको फिर से वापस वही बुचर दिखा, फिर से वो सपना आने लगा, तो उसने कस के पापा की शर्ट पकड़ ली। यस प्लीज रीड। Then the dark did not matter. She lay still. Her, rub your feet against my legs and get them warm, said father. Tried out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. He was harder than grandmother, but it was a nice hardness, and every day he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald. She had torn up all his beautiful writing. She stared suddenly and sighed. What's the matter? Asked her father. Another dream. Oh, said the little girl, my head's on your heart. I can hear it going. What a big heart you have got, father, dear. थैंक यू, वेरी नाइस, थैंक्स अ लॉट। हुआ क्या देखिए, अब जब दोबारा सपना आया तो फिर उसने पापा को कस के पकड़ लिया था, तो उसके पापा ने कहा कि ठंड बहुत है, अपने पाँव को मेरे पाँव से रगड़ लो तो तुम्हें आराम मिलेगा। तुमने फिर उसने, अब उसको एकदम से अच्छा लगने लग गया कि अब उसको फादर का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ में आने लगा कि मेरे पापा शायद इतने बड़े दानव भी नहीं है, देखो ये सब का ध्यान रखते हैं और इनके हाथ थोड़े दादी जितने सॉफ्ट नहीं है लेकिन अच्छे हार्ड है, मतलब प्यार से उसको महसूस हुआ अपने फादर का। हर दिन देखो पापा को कितना काम करना पड़ता है, और मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह ये फालतू तो है नहीं कि बच्चे के साथ खेल पाए, ये बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा थक जाते हैं जब तक आते हुए। और फिर एकदम से वो उठी तो उसके बाद हमने पूछा क्यों, क्या हुआ, फिर से कोई बुरा सपना आया? उसने कहा कि नहीं नहीं, मेरा हाथ आपके हार्ट पर रखा हुआ है और वो मैं उसकी धड़कन महसूस कर पा रही हूँ। फादर आपका हार्ट कितना बड़ा है। अब देखिए लास्ट सेंटेंस जब वो बोल रही है तब ना तो वो हकला रही है ना वो डर रही है। फाइनली दादी की विश पूरी हो गई और फादर और डॉटर में दोस्ती हो गई। दिस इज द चैप्टर। इट्स अ वेरी नाइस स्वीट little chapter. So let's just quickly look into the questions. I think it's not there. Can somebody tell me? Yes, Ruchi, unmute yourself. Unmute yourself, Ruchi. Ma'am, the questions? Yes, the match the following. Fear or terror? कौन से इमोशन से fear और terror मैच कर रहा है, बताइए। Page number 38. Father Ma'am, comes in. noise of See, I'll read the sentence. Father comes into her room to give her a goodbye kiss. सुबह ऑफिस जाते टाइम फादर उसको किस करके जाते हैं। Noise of the carriage grows fainter. जैसे उसके फादर की बग्गी दूर जाती है, आवाज कम आती जाती है। Father comes home. जब फादर शाम को घर आते हैं तब। Speaking to father, अपने फादर से बोलते वक्त। Going to bed when alone at home. जब वो अकेली थी घर में तब सोने जाने के लिए एक टाइम उसके इमोशन। Father comforts her and falls asleep. फादर उसको आराम दिलाते हैं और उसको पास में अपने गोद में ही सुलाते हैं। फादर stretched out on the sofa snoring. फादर जब दोपहर में संडे दोपहर में अपने सोफा पे ड्राइंग रूम में सो जाते हैं तब। ये सारे इवेंट्स हैं और 3 फीलिंग दे रखी है, फियर और टेरर, ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ या फनी फीलिंग परहैप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। 3 इमोशंस है, आपको बताना है कौन सा सेंटेंस के साथ कौन सा इमोशन है। यस अनुष्का, अनम्यूट योरसेल्फ।
Yes, ma'am. Tell me the feeling. Match the sentences with it. Yes, ma'am. Ma'am, the first one is fear of terror, and its answer is father comes home. Second, glad sense of relief. Its answer is noise of the carriage grows fainter. Third, a funny feeling, perhaps of understanding. Its father comforts her and falls asleep. Yes, very good. But there are Thank- couple of sentences more. Fear और terror का emotion उसको तब भी आता है, थर्ड पॉइंट में भी आता है जब फादर कम्स होम, और फियर उसको तब भी होता है जब उसको अकेले रात को सोना पड़ता है, और ग्लैड और सेंस ऑफ रिलीफ तब भी है जब दोपहर को दादी जबरदस्ती भेजती है कि जाओ पापा से बात करो, मम्मा से बात करो, और पापा सो रहे होते हैं, तब भी उसको सेंस ऑफ रिलीफ है. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. यस है ना पीयूष? Why was Kezia afraid of her father? Father से डर क्यों लगता था? Gunjan, unmute yourself. Gunjan, quickly unmute yourself. Anushka, I think you've answered, so don't raise your hands. Let others also try. Ruchi, you also answered. Lower down your hand. Aryan, unmute yourself. Yes, ma'am. केजे को अपने फादर से डर क्यों लगता था? Ma'am, because he used to talk to her harshly, he was in a habit of finding out her mistake. And yes, he was very rude to her, and he used to get angry and hit her. So she was really scared of her father. Yes, thank you. And Piyush, unmute yourself. Good morning, ma'am. Morning. Question number 2. Who were the people in Kezia's family? In Kezia's family had her grandmother, mother, and father. Yes, very nice. There was a family, there were a couple of servants also in the family. One servant had a name who consoled her when the mother was not there. Mute yourself. What was Kezia's father routine? Kezia के father का daily routine क्या था? सुबह ऑफिस जाने से पहले, ऑफिस से आने के बाद, और संडेज को. 3 अलग अलग इवेंट्स पे केजिया के फादर का रूटीन बताइए. Anybody other than Anushka and Ruchi, because they've already answered. Piyush have already answered. Hina, unmute yourself. Hina, please unmute yourself. Yes, ma'am. Could you please answer? Yes, ma'am. Ma'am, before going to his office, he used to kiss Kezia and say casually before going to his office goodbye. Every And- day he used to kiss her before going out. Yes. Yes, Second. Ma'am, second is after coming back from his office. It is, ma'am, he would ask for newspaper and tea after coming back from his office. Yes, ma'am. On Sundays, And he used to have teas, and it was Kezia's duty to take off his shoes. Yes, and on Sundays? yes, ma'am. Ma'am, on Sundays, he would take rest. He would enjoy sound sleep on the sofa. And cover his face with his own handkerchief. Yes, thank you. Very nice. Next question. Nitesh, unmute yourself. Yes, ma'am. Question number 4. In what way did Kezia's grandmother encourage her to get to know her father better? कैसे grandmother push करती थी केजिया को कि उसका और उसके father का bond strong हो सके? Ma'am, because his father was very rude to Kezia, so her grandmother always tried to order Kezia
Hmm. to go and talk to his father in the Her family. father. Her father. Yes, ma'am. हुआ क्या, कैसा था इवेंट, क्या था? 2 बार ऐसा इवेंट हुआ था। Ma'am, his mother was reading something and his father was and her His father father नहीं, was हाँ हाँ sleeping. Her father was नहीं नहीं sleeping नहीं, on आई the एम सेइंग sofa. कि ग्रैंडमदर ने 2 बार पुश किया था केजिया को, वो 2 इवेंट्स कौन से थे? Hmm, यस हिना, यू आर मैम राइट। फर्स्ट मैम सेकंड इवेंट तो नहीं पता एक बताइए। मैम। वही कि उसकी ग्रैंडमदर उसको पुश कर रही थी कि तुम फैमिली में जाके बात करो नीचे हाँ सबसे हाँ, बैठ के। on Sundays ko, when the parents were resting in the drawing room, the grandmother asked Kezia to go and talk to them, have a conversation with your parents. And the second instance was grandmother asked her to make a birthday gift for her father, Oh, which yes, was ma'am. yes, क्या बनाने को बोला था? मैम पिन क्वेश्चन। Same question. Yes, very nice. Thank you. There are a couple of more questions which we will not be doing in the copy, but since we have time, so let's discuss. Piyush Chandwani. Yes, Yes, ma'am. Piyush. So third part का first question, Kezia's efforts to please her father resulted in displeasing him very much. How did this happen? Kezia ने कोशिश की थी कि फादर को खुश करें, लेकिन उल्टा वो गुस्सा हो गए। ऐसा क्या हुआ था? हम क्योंकि इसने जो अपनी जो इम्पोर्टेंट फाइल थी ना उसके पापा की, हम उससे इसने बना दिए थे, इसलिए। मैम पिन कोड। पिन क्वेश्चन की स्टफिंग बना दी थी उसने, फादर की इम्पोर्टेंट स्पीच डॉक्यूमेंट को फाड़ के उससे स्टफिंग कर दी थी। यस, थैंक यू। तो वो खुश करने गई थी, लेकिन उल्टा पापा उसके गुस्सा हो गए। अनुष्का, unmute yourself. Yes, ma'am. Could you answer? Kezia decided that there are different kinds of father. What kind of father was Mr. McDonald and how was he different from Kezia's father? Kezia ने Yes. कहा कि अलग-अलग किस्म के फादर होते हैं। क्या Yes. क्या किस्म थी और मैकडोनल्ड कैसे फादर थे? Ma'am, in Kezia's opinion, her father was very harsh. He did not talk to her affectionately, but rather he used to speak to her stringently. So he avoided him. She avoided him. She She did not avoided. want to be in front of him because she was afraid of him. McDonald family lived next door to house. One evening she saw him playing tag with his children, a baby on his shoulders, and 2 little girls were hanging on to his coat pockets. They were laughing. Also, she saw some boys turn the hose on McDonald, and he tried to catch them laughing all the time. She found them feel friendly with her father, so she wished her father were like them. So was that a good father? Do you believe there are different kinds of father? No, ma'am. Fathers are one type. Yes, Okay. ma'am. Thank you. Yes, the last question. How does Kezia begin to see her father as a human being who needs her sympathy? Anushka, you've already answered. आखिरी में केजिया को अपने फादर डेविल नहीं लग रहे थे, एक ह्यूमन बीइंग लगने लग गए थे। ऐसा क्या हुआ था? Yes, Nitesh, unmute yourself. मैम जब वो रात को मैम सोने गई थी तो मैम उसकी ग्रैनी तो वहां पर थी नहीं थी, तो मैम जैसे उसको कभी सपने आते थे तो वो अपनी ग्रैंड माँ के पास चली जाती थी अगर कोई बुरे सपने आते थे तो। लेकिन मैम उस दिन रात को उसकी ग्रैनी वहां पर नहीं थी, तो मैम उसको बहुत ज्यादा बुरे सपने आए थे कि एक बच्चा, उसके हाथ में एक चाकू है और वो एक रोप लेके आ रहा है उसको मारने के लिए और उसको बांधने के लिए। तो वो ये सोच के डर जाती है और फिर बहुत ज्यादा चिल्लाती है। तो उसके फिर जैसे ही वो आंखें खोलती है डर डर में, तो उसके फादर उसके सामने खड़े होते हैं कैंडल लेके।
तो मैम वो फिर उसके फादर बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो, चिल्ला क्यों रही हो तुम। तो वो फिर मैम पूरी कहानी नहीं बता पाती, वो बस इतना बोलते कि वो बच्चा था, उसके हाथ में चाकू था, मुझे ग्रैनी चाहिए। तो फिर उसके फादर ही उसके सामने सो जाते उसके साथ में, ताकि उसको किसी बात का डर ना लगे, क्योंकि वो जानते थे कि हाँ इसके साथ ये प्रॉब्लम है कि ये रात को इसको बुरे सपने डर आते हैं। जाते हैं, हाँ। तो मैम फिर Yes, वो फिर thank you. रात Very को nice. उसके साथ Very nice. Neha, unmute yourself. Neha, would you add something to this question also? Nitesh is already told. No, Ritesh has told the first part of the question. The second part, where she realized that her father was not a devil after all. He was not a giant. He was also a human being. When did Yes, she realize that? ma'am, when she was afraid of nightmare, his father gave him authority and gave him a peaceful sleep in his arms. And then she realized that his father also has a big heart. Yes, so this is the line I was looking for. Thank you. That his hands were hard, but it were hard in a good way. And she could feel the warmth and love of her father when she, uh, yes, Anna, that was right. And she could feel the warmth and love of his father. And now she realized that he also has to work so hard every day. He goes out and works so much for the family, and he comes home tired. He must be very tired working so hard. And now she also sympathized with the father that since the father does so much thing for herself and for the family, he must be very tired, and he's not that bad after all. Just like the grandmother used to comfort her, just similarly way the father was also comforting her. So she realized that the father is a good person after all, and she started have a different perspective. Now she doesn't stammer while talking to the father, and she is very happy now. So this completes our chapter and the discussion. Do you have any query? Does anybody has a question? In the next class, we'll take the question answers and the word meanings. Do you have any question? If we have couple of minutes here. Do we have a maths class tomorrow? Anybody? Or we have an English class? We just have one period with you. Nobody knows. Okay, I have to see the register.